Hello there, Ashutosh this side, and today we are going to see a 2022 share market fall. Here I have taken a step by step, a month by month and event by event approach to make you understand more precisely how this fall is well connected with the year 2021. Yes, you have heard it right. So let's get to our presentation straight. You can see a chart on your screen where on the left side there is a chart of Nifty in October 2021 and on the right side there is a chart of December of Nifty only of December 2021. In October month the Nifty was trading at 18,338 and it was the same time there was this crazy bull run which was still going on, and we were expecting Nifty to reach a 20,000 and some people who were extra bullish were expecting Nifty to reach 25,000 by the end of the year. And even there are some people who were saying that Nifty will surely touch 19,000 even for once in December. But what happened in December? The Nifty touches 16,985, a 1,400 sharp fall in December. So what has happened during this time that Nifty has fallen to 16,985 versus our expectation of Nifty touching a 20,000. So as long as you might have remembered, the December there was a Omicron cases started rising in December, and as our profit rises in during the bull run, the cases were rising like that only. So that was the most genuine reason why Nifty touched 16,985, and many people labeled it as a correction, a Omicron fear and everything, and I think that was a right. But from October to December a lot of things has happened and on which nobody has ever paid heed. So now I will be explaining you that there were the cues of inflation, but no measures were taken. Let me tell you a fact that RBI did not change a CRR and repo rate right from 2018. Okay. So in October, the CPI, the Consumer Price Index, have increased 6.2%. But you know, nobody has ever heard CPI until this March when the market started falling. क्योंकि इंडिया में क्या है ना कि जब तक अच्छा चल रहा है तो कोई यहाँ रीजन मत बताओ यार, चलो क्या खरीदना है बताओ. बट जब फॉल होता है तो सबको जानने का है कि क्यों गिर रहा है. तो दैट वाज द मेन रीजन. और इवन द रिटेल इन्फ्लेशन वाज आल्सो राइज फ्रॉम 4.48 in October to 4.91 in November. So these cues were there, but we retail people don't pay heed, and it's not the case that I'm knowing this right from October itself and becoming conservative from that time. Even I had known this when I was making this presentation. So I think stock market is much like life. You have to live forward and then understand it backward when you do your retrospection. So that has happened. Nobody paid heed. Even the only people those who have paid it would be I think the chief economist. Otherwise I think inflation okay आता है, होती है महंगाई, 7% तो सबका है, तभी तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, blah 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 blah. We have our own reason है, FD में क्यों डालता है यार. So I have documents to support this, and even though we didn't take it seriously, we as in retail, you and I, but FIs have their eye on this, like they were tracking this, and from that time only they were seeking some better opportunities. So this is the data that is coming on your screen. You can see that I have named it FI का कच्चा चिट्ठा, क्योंकि देखो अब सितंबर से ही फॉल आना स्टार्ट हो गया था, उन्होंने बेचना स्टार्ट तो कर दिया था. इन अक्टूबर दे हैव सोल्ड ऑफ 25,000 एंड वी अब दिसंबर में इन्फ्लेशन आया. हमने दिसंबर का बात किया, अक्टूबर नवंबर में सेल क्यों आया? क्योंकि नहीं, दिसंबर में ओमिक्रॉन आया, अक्टूबर नवंबर में सेल क्यों आया? जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो दैट इज अ प्योर रीजन कि उन्होंने इमर्जिंग मार्केट्स देखना चालू कर दिए थे. तो जब निफ्टी 16,985 दिसंबर में पहुंचा, तब आई हैव हर्ड द मोस्ट स्टूपिड थिंग. I asked some people and I asked them that why market is falling, and they told me that FIs no, वो छुट्टी पे जाते हैं, and when they go on holidays they square off their position. I think this is the most stupidest what we can say answer to any question. Like it's not the case. The case is which is coming on your screen. FI started selling and then putting money in emerging markets. Like you can see on your screen that there is a bar of India which is going downside
colored in blue, that FI sold $19,441 million investment from India and put those money in Brazil, Thailand, Indonesia and Malaysia. And you go and find this data on Google, you won't find it. Forget this, you can't even find who are the top FIs of countries, because nobody has time to put this data. Like, this is not even important. And I'll tell you all those points which you will not find on Google. You have to read reports and everything, because Google only will find buy Nazara Technology, target 2,500, buy Tata Elxsi, target 10,000, buy Bajaj Finance, target 12,000, buy Radico Khaitan, target 1,700. So this is what you can see on your screen. So अब हमने कवर कर लिया अक्टूबर में इन्फ्लेशन के क्यूज मिल रहे थे, आरबीआई के रेट चेंज नहीं हुए थे, एफआईज ने एक बेटर ऑप्शन देखना चालू कर दिया था नवंबर, और जैसा आपके स्क्रीन पे देखा दिसंबर में अच्छे सेलिंग हुई और साथ बाय साथ एक कोविड मिल गया, मतलब ओमिक्रॉन मिल गया, तो वो उसमें चीज दब गई। लेकिन ये जो डिसीजन था कि उन्होंने पहले से ही अपना पैसा निकाल के ब्राजील और सारे इमर्जिंग मार्केट में लगाना चालू कर दिया था, तो दिसंबर तक हम आ गए हैं और निफ्टी पहुंच गया 16,985 पे। अब आते हैं हम दिसंबर को ही देखते हैं कि ठीक है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि इवन आरबीआई गवर्नमेंट ने बोला कि इकोनॉमी इज फेसिंग हेडविंड्स फ्रॉम ओमिक्रॉन एंड इन्फ्लेशन, एंड फॉर दैट दे डिड नॉट चेंज रेट ऑल्सो। लाइक 4 साल से नहीं बदले तो अब क्यों बदलना, क्योंकि अब ओमिक्रॉन आ गया है, और ओमिक्रॉन जिस हिसाब से बढ़ रहा था तो एवरीबडी वाज थिंकिंग कि यार ये तो बहुत समय तक चलेगा, एंड आई थिंक आरबीआई वाज राइट ऑन देयर फ्रंट कि क्यों करना चेंज, आई थिंक। लेकिन फिर क्या होता है, पिक्चर चेंज होती है और नया साल आता है, हैप्पी न्यू ईयर 22, जनवरी 22। विद इन द 15 डेज ऑफ जनवरी कोई ओमिक्रॉन का नाम भी नहीं लेता है, केसेस ऐसे कम हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है ना, इंडिया में आरबीआई की जो मीट होती है जिसमें 3 आरबीआई के मेंबर्स और 3 गवर्नमेंट के मेंबर्स मिलते हैं, वो 2-2 महीने के इंटरवल पे मिलते हैं और कभी डिसाइडेड नहीं है कि बीच में मिलना है। तो अब समझो जैन में मिले तो अब मिलेंगे मार्च में, मार्च में मिल गए तो मिल जाएंगे मई में, या फिर फेब में मिलेंगे तो फिर 2 महीने बाद मिलेंगे। अब जैन में उन्होंने डिसीजन लिया था क्योंकि ओमिक्रॉन था, अब ओमिक्रॉन तो चले गया, तो अब उनके पास टाइम था कि यार वो इन्फ्लेशन के क्यूज तो उनको मिले ही होंगे कि हम कुछ चेंज करें। लेकिन अब ठीक है यार, कुछ नहीं करते, एक स्टेटमेंट दे देते कि आरबीआई विल इन्फ्यूज लिक्विडिटी, एक्सेस लिक्विडिटी इन अ स्टैगर्ड मैनर, ऐसा एक स्टेटमेंट दे दिया गया और फिर देखेंगे बजट के बाद। अब एट दिस टाइम इन जनवरी एक स्टेटमेंट आता है, ग्लोबल जीडीपी का ग्रोथ रेट 5.9 से 4.4 हो जाता है। बट ये भी कोई न्यूज चैनल, कोई फाइनेंशियल वेबसाइट, हनी कंट्रोल, नॉट सो इकोनॉमिक टाइम्स, कोई भी कवर नहीं करता है, क्योंकि सबको शेयर प्राइस के टारगेट देने हैं। तो जनवरी जैसे वैसे चल जाता है, एंड एट दिस टाइम कभी एफआईएस बायर हो जाती है तो कभी डीआईएस बायर हो जाती है, कभी एफआईएस सेल कर लेती है तो डीआई बाय कर लेती है, तो मार्केट में ना उतना नहीं आता है। बट इफ यू ट्रैक मार्केट एंड यू चेक एवरी रिजल्ट, यू विल फाइंड दैट कि अक्टूबर का जो दिसंबर का जो क्वार्टर था, यू विल फाइंड आउट कि उस समय एशियन पेंट्स सारे कमोडिटी ने बहुत खराब रिजल्ट दिया था, जो भी कमोडिटी ड्रिवन बिजनेस है, बीट एशियन पेंट, केमिकल स्टॉक्स, पीडीलाइट का, दीपक नाइट्रेट, अल्किल, बालाजी अमीन्स सब पिटे थे, क्योंकि मार्जिन प्रेशर था, क्योंकि इन्फ्लेशन आ चुका था, क्रूड के प्राइसेस 85 पर बैरल, 90 पर बैरल जा रहे थे। इवन अब यहाँ तक वॉर पिक्चर में नहीं आई है। तो वो क्वार्टर एक ऐसा क्वार्टर था जहां पे कमोडिटी की साइकिल भी चल रही थी, जहां पे टाटा स्टील ने अपना हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पोस्ट किया था। लाइक टाटा स्टील पोस्टेड प्रॉफिट विच वाज ग्रेटर देन सम ऑफ एग्रीगेट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय टीसीएस अप टिल नाउ। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने इतना ज्यादा प्रॉफिट पोस्ट किया था। यू कैन सी कि कमोडिटी की साइकिल चल रही है, इक्विटी थोड़ा अब करेक्शन में आ गया है, बट वो ये कि अब रिट्रोस्पेक्शन में समझ रहा है, तब किसी को नहीं समझ रहा था। एंड इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि इतना विजन किसी के पास नहीं है, क्योंकि इतना इट्स लाइक कि तो जो अब यहां तक वॉर आने का ही है पिक्चर में, और फॉल की जो रूपरेखा थी वो ड्रॉ हो चुकी थी। एंड फॉर ऑल द पीपल हु थिंक कि द मार्केट इज फॉलिंग बिकॉज ऑफ वॉर, देयर इज अ स्टेटमेंट बाय सचिन तेंदुलकर वेयर ही सेड, I did not win any trophies at live matches. I have just collected them. I have won those trophies at my nets and during practice session. It's the same thing like that. एक it's like कि वो टच होने वाला था. It's like कि later part of year में होता है. And then war has happened. तो अब हम आते हैं फरवरी में, जो सबका सबसे खराब महीना होगा आई गेस, कि आफ्टर फरवरी
पुतिन स्टार्टेड गिविंग कि हम अब वॉर करेंगे, एंड फेब्रुअरी इज द मोस्ट हैपनिंग मंथ, लाइक उसमें 28 डेज है, लेकिन एट दैट टाइम everyone started talking about inflation, like analysts coming on TV and they started telling about inflation. Oil prices started on rising, and on 24th of February when market fell like anything because of Russia Ukraine का war एकदम main इस पे था शायद वो, and at the same time people were started about IT resignation, like year of great resignation जो US की थीम थी उसके बारे में इंडिया में बात चल रहे, then they started about attrition, they started about everything, like at February you will see like फाइनेंस इकोनॉमिक्स में कैसा एकदम कूदा गया. एंड 24th February वी ऑल हैव सीन कि एट 25th February मार्केट हैड टच अगेन 16,658. तो हमारे स्टोरी में हमने 3 बार निफ्टी को कवर किया. पहली बार जब किया था निफ्टी को तो वो अक्टूबर में 18,338 पे था, उसके बाद वो दिसंबर में आता है 16,800 के आसपास, और अब वॉर के समय आ जाता है 16,658 में. तो तीनों बार जो हमने लिया वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड पे लिया है, इसके बीच में उसने अपने कुछ बनाया होंगे. तो फरवरी में हम अचानक से आ जाते हैं. अब जैसे ही फेब खत्म होता है और हम मार्च में जाते हैं, तो मार्च बीइंग अ क्लोजिंग, तो सब सोचते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग होंगी, एंड एट दैट टाइम आई थिंक यार एट द एंड तो मार्केट में बहुत गंदी प्रॉफिट बुकिंग आएंगी, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया ना. आई बॉट पुट एंड आई हैव लाइक मेरे को क्रेजी लॉस हुआ उसमें, क्योंकि आई वॉज रॉन्ग. मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा था, 16,658 से मार्केट 17,000 की इधर अप्रोच कर रहा था, एंड देन अगेन टारगेट आ गए. लेकिन इस बीच में ना आईटी का गेम बजना स्टार्ट हो गया. एंड व्हाई आई एम टॉकिंग ऑफ द आईटी, बिकॉज आईटी इज इंडियाज मोस्ट फेवरेट सेक्टर. लाइक यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, लाइक 56% ऑफ पीपल इन्वेस्ट इन आईटी. लाइक द अमाउंट ऑफ पीपल इन्वेस्टिंग इन आईटी इज ग्रेटर देन द other sectors. Like 6.78% people only invest in FMCG, like 6% people invest in pharma, 8% people, like 13% people invest in penny stock in India, but 56% people in IT. And it is the same time यहाँ पे एक जैसे .com बबल हुआ था ना, बस तो वैसी एक बात होने लगी थी इन स्टार्टिंग ऑफ मार्च की मिड कैप आईटी ओवर वैल्यूड है क्या. So at that time people started changing their preferences and they started buying TCS, Infosys, Wipro, all and HCL, all the large cap, and there were little bit correction in mid cap IT से Mindtree, LTI, LTTS, Persistent, Tata Elxsi, Coforge, Mphasis. तो इसमें थोड़ा मोड़ा करेक्शन आ रहा था, लेकिन ऐसा कोई बड़ा सा करेक्शन नहीं आया था, because we were still in March and India and IT being India's favorite sector among all, तो IT तो सबसे पहले एक इस पे रहता है. बट एट द टाइम बस एक डिस्कशन हुआ था कि ठीक है यार आईटी ओवर वैल्यूड है. बाद में आईटी मार्च में क्या होता है कि एक स्टेटमेंट आता है जिसमें बोला जाता है कि बिग इन्वेस्टर सेट टू रिबैलेंस देयर पोर्टफोलियो विद 230 बिलियन शिफ्ट फ्रॉम बॉन्ड्स टू शेयर. अब जैसे ही कैलकुलेशन बिलियन डॉलर में आती है और बॉन्ड्स में और बिलियन में आती है, डॉलर में आती है, तो हमें लगता है कि ठीक है यार बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है. एंड जो कि सच भी था कि 2000 मतलब मार्च में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आया भी. एक एफआईएस थी वैनगार्ड, उन्होंने एक ही दिन में 2,300 करोड़ का फंड डिप्लॉय कर डाला, जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है. तो अब मार्च में हम तो भूल गए कि यार हो गया वॉर. अब फिर से हम आ गए उस फेज में कि ठीक है यार अब तो हमने बनाने न्यू हाई. तो अब फिर से लोग चालू हो गए कि अनिल जी आप देखिएगा बाय द एंड ऑफ अक्टूबर आपको निफ्टी 25,000 पे दिखेगा. पीपल स्टार्टेड सेइंग दिस थिंग एंड लिविंग असाइड all the inflation and all the economic facts aside, and then एक स्टेटमेंट आता है S&P 500 से कि जो वहां के आईटी स्टॉक्स है वो सबड्यूड रहेंगे फॉर नेक्स्ट 2 years. और ये भी कोई न्यूज़पेपर नहीं छापता. आप सर्च करो कि S&P 500 का क्या स्टेटमेंट है, आपको कोई गूगल पे नहीं मिलेगा. और वो बोलते हैं कि ड्यू टू मार्जिन प्रेशर एंड ड्यू टू दिस जियोपॉलिटिकल चेंजेस as expected, IT will not achieve its growth within the time span and it might take 6 to 7 years. Like पहले से लग रहा था कि 10 साल की जो ग्रोथ है वो 3-4 साल में हो जाएगी अचीव. तो अब क्या होता है कि इंडिया की जो मेन कंपनीज है मोस्टली मिड कैप आईटी, जिसमें माइंड्री, एलटीआई, एलटीटीएस, कोफोर्ज, एम्फसिस, ये सब अपना जो रेवेन्यू है ना वो नॉर्थ अमेरिका के यहाँ से डिराइव करती है. और जब नॉर्थ अमेरिका के इंडेक्स ने ही बोल दिया कि हम लोग 2 साल तक परफॉर्म नहीं करेंगे, तो ये मिड कैप आईटी गिरने लगा. तब लाइक बात चल रही थी पहले हमारे दिमाग में आया था कि मिड कैप आईटी ओवर वैल्यूड है, लेकिन तब कुछ नहीं हुआ. थोड़ा बहुत फोकस हुआ
इस बीच में कॉग्निजेंट के रिजल्ट आए जिन्होंने एक अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड किया, लेकिन फिर टीसीएस के रिजल्ट खराब आए, बाद में इन्फोसिस के रिजल्ट इतने खराब आए और एट्रिशन रेट हुआ कि लार्ज कैप आईटी भी गिरने लगा। तो मैं बात कर रहा था कि ये नॉर्थ अमेरिका की, अब ये बात भी रिटेलर्स को नहीं पता थी, तो इसके बाद से ही ये सारे स्टॉक्स में एक फॉल स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब स्टोरी ऐसी है कि सारे मिड कैप आईटी गिर रहे, पड़ रहे। इस बीच में नैस्डैक में बहुत बड़ा सेल ऑफ आता है जिसमें नेटफ्लिक्स, जूम, ऑक्टा, स्प्लंक, इंटेल ये सारे 50-50, 30% गिर जाते हैं। इसके बाद ऐसा होता है कि फेड के कुछ रेट चेंजेस होते हैं और उसके बाद आपके फैंग स्टॉक फेसबुक, एप्पल, अल्फाबेट, निविडिया ये सारे भी गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और ये सब भी 40-40, 30% गिरते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंडिया में मिड कैप आईटी गिर रहा है, यहाँ पे ये गिर रहा है, एडीआर जो यूएस में लिस्टेड है इन्फोसिस, विप्रो के, वो गिर रहे हैं। तो और आईटी एक बहुत ही माइटी सेक्टर है इंडिया के लिए, मतलब आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो वहां से फॉल स्टार्ट होता है। ठीक है, अब आईटी गिर रहा है ओवर वैल्यूएशन के वजह से और हमको पता नहीं कि कहाँ रुकेगा और किसने रीजन तक नहीं बताया कि एसएनपी ग्लोबल ने बोला था कि यार हमारी दो साल तक हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं रहेगी इसलिए। ठीक है, उसके बाद अप्रैल में दोपहर के 1 बजे आरबीआई की मीटअप होती है और 4 साल बाद आरबीआई 40 बेसिस पॉइंट से अपना सीआरआर और रेपो रेट बढ़ाते हैं। जिन्हें सीआरआर और रेपो रेट नहीं पता, मैं एक मेरे फ्रेंड है उसने बहुत ही सिंपल वे में सीआरआर और रेपो रेट एक्सप्लेन किया, उसकी लिंक पक्का इस बार डालूंगा नीचे। तो अब दोपहर में 1 बजे के बाद अब यहां से बैंकिंग स्टॉक गिरना स्टार्ट होते हैं कि कोटक इतना अच्छा रिजल्ट देता है लेकिन कुछ इंपैक्ट नहीं, कोटक 2.5%, एचडीएफसी तो फिर से नीचे चले जाने लगता है, आईसीआईसीआई बैंक। एंड नेक्स्ट डे आप देखो तो एनबीएफसी जैसे चोलामंडलम, बजाज फाइनेंस ये सब 10 मतलब चोलामंडलम 10%, बजाज फाइनेंस 5%। अब मतलब एक बार के करेक्शन में तो हम सब पीस रहे थे, उसके बाद ये सेक्टर स्पेसिफिक करेक्शन आया, जैसे पहले आईटी, बाद में फाइनेंशियल, कोर फाइनेंशियल और बाद में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, क्योंकि 4 साल बाद ये आया और बैंक निफ्टी की बच गई लिटरली। अब हमने इतने सारे इवेंट्स कवर किए कि इन्फ्लेशन जो हमें अक्टूबर से उन्होंने पकड़ा था, हमने नहीं पकड़ा। आईटी क्यों गिरा इसका रीजन किसी को नहीं पता कि एसएनपी ग्लोबल ने दिया, क्योंकि वो किसी ने नहीं रखा। ठीक है, वैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो एलआईसी का आईपीओ का प्रीमियम वैसे 26 रुपए गिर चुका है, अब वो आ गया तो मैं सोचा कि आपको थोड़ा गिल्ट उसका भी दे दूं। तो 4 साल बाद रेट चेंज होता है और ये गिरना स्टार्ट होते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा मार्केट आज स्टैंड कर रहा है 15,700 पे और इसके लिए इतने सारे रीजन है। और उसके बाद जैसे बोलते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो अब उसके बाद क्या होता है ना कि अचानक से रूपी तक गिरने लगता है। अब यहाँ पे इक्विटी मार्केट गिर गया है, यहाँ आईटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, रूपी सबसे लोअर हो जाता है। और न्यूज वाले ये बहुत अच्छे से कैश इन करते हैं। न्यूज का हेडलाइन रहता है इंडिया फॉरेक्स रिजर्व फॉल बिलो 600 बिलियन लोवेस्ट। अब वो लोवेस्ट कब का है वो नहीं बताया। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने सोच लिया कि लोवेस्ट मतलब जो 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ था उससे भी तो नीचे नहीं चले गया, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि फॉल हो रहा है तो करेक्शन इसमें भी आया होगा। इट्स नॉट दैट लोवेस्ट, लाइक हमारा जो जून में था उससे नीचे गया। इट्स लाइक वी स्टिल हैव $600 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व, तो ऐसे डरने की बात नहीं है। तो अब आरबीआई यहाँ पे और बोल देता है कि यार हम तो जून में ना और इसको बढ़ाएंगे सीआरआर और रेपो रेट को। तो इट्स लाइक कि फिर मतलब आप पहले 4 साल कुछ नहीं किया, एक दिन दोपहर में 1 बजे आके बढ़ा दिया, या यूएस ने जो फेड में बजाई वो तो सबको पता है। और उसके बाद अब आरबीआई आज मतलब 12 तारीख जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज भी आरबीआई ने बोल दिया कि हम फिर से जब जून में मिलेंगे 2 महीने बाद तब और रेट बढ़ाएंगे। तो ये इतने सारे इवेंट एक साथ आए तो अब ये एकदम ऐसा कैटास्ट्रोफिक इवेंट लगने लगा है कि यार ये रिकंसाइल भी होगा कि नहीं होगा। तो ये सब था कि 2022 का फॉल जिसकी जो लिंक है वो 2021 से थी, मतलब एक बनाया गया है ऐसा कि बट यार कोई भी ध्यान नहीं देता लिटरली। मतलब इट्स नॉट कि यार हमने ध्यान क्यों नहीं दिया, लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये सब वही बताना कि हमें रिट्रोस्पेक्शन में पता चलती है। पहले तो अगर कोई बता देता तो वो भगवान ही होगा, उसको पता होगा। तो अब क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछ रहे कि विल एफआई कम बैक टू इंडिया। तो इसका आंसर वैसे तो सही में किसी को नहीं पता, ये भी जब आगे में जब एफआई आएंगी तब हम वीडियो बना के बोलेंगे कि एफआई क्यों वापस आई। तो इट्स लाइक कि दिस इज द ट्राइंग टाइम्स, इन्फ्लेशन ऑन इट्स पीक, एट्रिशन, रिसेशन,
स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, ये सारी टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है. एट दिस पॉइंट एवरीबडी विल पुश अ बटन ऑफ कॉशन. लाइक कोई भी इमर्जिंग मार्केट में नहीं आएगा, डेवलपिंग मार्केट में नहीं आएगा, हर कोई सेफ रहेगा, अपने कंट्री में रहेगा. तो आई डोंट थिंक कि फॉर नेक्स्ट 5-6 months FIs will come back, because what do they have? They literally kept on selling this holding. It's not even a profit booking. They kept on selling, so there is nothing to average. DIs एवरेज कर रही है, FIs बेच रही है, DIs एवरेज कर रही है. और इस बीच में आप देखोगे कि कुछ स्टॉक्स बहुत ज्यादा पिटे हैं. लाइक इसमें मैंने कवर ही नहीं किया कि बीच में नायका, PB फिनटेक, पेटीएम और ये सारे लॉस मेकिंग स्टार्टअप पिट गए. लिटरली 50, 60% डाउन थे. हाँ, बड़े बड़े पी नीचे आ गए. और मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया कि हमारे यहाँ MNC एक्सपेंसिव ट्रेड करती है, हमारे यहाँ सेक्टर लीडर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रेड करता है. तो यहाँ पे हर करेक्शन छोटा है, क्योंकि अगर कोई कंपनी आधी हो जाती है तो हम बोलेंगे ठीक है ना यार, US में तो वो वैसे ट्रेड कर रही है, बट वो कंपैरिजन उतना फिजिबल नहीं है, फंजिबल नहीं है. सो ये था पूरा एक 2021 से जो हुआ, स्टेप बाय स्टेप इन्फ्लेशन आया. इन्फ्लेशन वाज द मेन रीजन. उसके बाद एक लोगों ने छोड़ना चालू किया, मार्जिन्स कम हुई. पहले प्रोडक्ट्स की मार्जिन कम हुई, पेंट्स एंड ऑल, बाद में IT सेक्टर की मार्जिन कम हुई. तो दिस इज हाउ बिगर पिक्चर. सो ये सब एक रिट्रोस्पेक्शन में पता चला है जब हमने इसे आज से बैकवर्ड देखा और सारी चीज़ें देखी. इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी कि 2021 में जब एक 2022 जनवरी में एक पब्लिश हुई थी इंडिया इकोनॉमिक बुक, उसमें इन्फ्लेशन को हाईलाइट किया था कि वो समझ गए थे कि आ चुका है, बट इट्स लाइक कि डॉक्यूमेंट्स नहीं थे सपोर्ट करने को. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर करी हो. आप मुझे प्लीज़ बताइए आपको ये कैसा लगा, एंड थैंक यू. हैप्पी इन्वेस्टिंग गाइस.